Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग यीशु। Good morning, everyone. आप सभी को गुड मॉर्निंग। How many of you like sweets? आप में से कितने लोग को मिठाई पसंद है? Type in the chat box what is your favorite sweet. आप चैट बॉक्स में टाइप करें आपकी मन पसंदीदा मिठाई कौन सी है। If laddu is your favorite sweet, यदि लड्डू आपकी फेवरेट मन पसंदीदा मिठाई है, if you forgot to add the sugar or sweet syrup in that laddu, you will not call this laddu. यदि आप लड्डू में चीनी या फिर चाशनी डालना भूल जाते हैं तो आप उसे लड्डू नहीं बोलेंगे And you will not eat laddu at all. और आप लड्डू खाएंगे भी नहीं। And if your favorite drink is any sweet cool drink, यदि आपकी मनपसंद ड्रिंक कोई भी मीठी वाली है, if that company forgets to put sweetness in that cool drink, you will not drink it. यदि वो कंपनी बनाते समय उस ड्रिंक में मीठा डालना भूल जाएंगे तो आप वो ड्रिंक नहीं पिएंगे। And how many of you remember आप में से कितने लोगों को याद है when anything good happens in our families, जब हमारे परिवारों में कुछ भी अच्छा होता है, when we hear any good news in our families, जब हमारे परिवारों में कोई अच्छी खबर सुनते हैं, our elders used to feed us sugar or jaggery हमारे जो बुजुर्ग वो हमें चीनी या फिर गुड़ खिलाया करते थे because it will be like a symbol of joy and happiness to our. क्योंकि वो मीठा खाना एक खुशी का चिन्ह होता था। So in the same way, वैसे ही Jesus' birth, यीशु मसीह का जन्म, Jesus' birth has become a sweetness, a symbol of joy and happiness in our lives. वैसे ही यीशु मसीह का जन्म एक मिठास बन चुका है, हमारे जीवन में एक खुशियों का चिन्ह बन चुका है। If there is no Jesus' birth, यदि यीशु मसीह का जन्म नहीं होता, we cannot call it as life. हम उसे जीवन नहीं कहते। We cannot call our life a life. हम अपने जीवन को जीवन नहीं कहते। Just like we cannot call laddu a sweet without sugar. जैसे हम लड्डू को बिना चीनी के मीठा नहीं कह सकते। Let's look into the Bible. आइए हम बाइबल में देखते हैं। Book of Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार, chapter 1, verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन। Now the birth of Jesus Christ was as follows. वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। Whole New Testament is based on these words. पूरा नया नियम इन वचनों के आधार पर ही है। What is that words? वो वचन क्या है? Now the birth of Jesus Christ was as follows. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। If there is no birth of Jesus Christ, यदि यीशु मसीह का जन्म नहीं होता, a story will not be available in the Bible. और बाइबल में वो कहानी उपलब्ध नहीं होती। A story will not create a New Testament. तो कहानी नए नियम को नहीं बनाती। No other story can create a New Testament. कोई भी नई कहानी नए नियम को नहीं बना सकती थी। Not even a single life become a transformational without this transformational Jesus birth story. एक भी जीवन नहीं बदलता ये ऐसी कहानी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की एक बदलाव की कहानी के बिना। If we remove Jesus' story from the Bible, Jesus' life, Jesus' birth from the Bible, यदि हम यीशु मसीह के कहानी को, यीशु मसीह के जीवन को बाइबल में से हटा देते हैं, there is no New Testament. वहाँ नया नियम होगा ही नहीं। We will not be saved. हम नहीं बचाए जाते। Why? Because क्यों? God our Father has given Jesus as our Savior. क्योंकि हमारे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमें उद्धारकर्ता करके दिया है। This Jesus story, ये यीशु मसीह की कहानी, Jesus' birth, यीशु मसीह का जन्म, is becoming a transformational story in our lives. यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवनों में एक बदलाव लाने वाली कहानी बन रहा है। We cannot transform our lives without Jesus. हम हमारे जीवन को यीशु मसीह के बिना नहीं बदल सकते। So today onwards, तो आज से लेकर I want to remind through these words. मैं इन वचनों के द्वारा आपको याद दिलाना चाहती I हूँ। want to remind all of you through this scripture. मैं इन वचनों के द्वारा आप सबको याद दिलाना Now चाहती the हूँ। birth of Jesus Christ was as follows. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। Let these words apply in our lives. आइए इस वचन को हमारे जीवन में लागू करते हैं। Now अभी my life becomes transformational as follows with the birth of Jesus Christ in my life. अब मेरा जीवन एक बदलाव का जीवन होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा बदलाव हुआ है।
Let's make our life a transformational story to others. आइए हमारे जीवन को एक ऐसी कहानी बना ले जो दूसरों के जीवन को बदले। Just as if we want to share a good news, we will take a laddu sweet and we will put it in others' mouth. जैसे हम किसी को खुश खबरी सुनाना चाहते हैं, हम लड्डू लेते हैं, दूसरों के मुंह में डालते हैं। Just like you take your life a transformational story that includes in your life Jesus' birth and give it to others as a sweet. वैसे ही आप अपने जीवन को दें जो बदलाव देने वाला जीवन है, एक मिठाई के जैसे आप अपना जीवन लें और दूसरों को दें। They will also experience the story, the transformational story in their life. It will happen, the transformation and testimonies will come out of them like a joy and happiness. वो भी अपने जीवन में एक बदलाव जीवन का अनुभव करेंगे और उनके जीवन में भी एक गवाही आएंगे जैसे नए नियम के जैसे। Why can't we do it from today onwards? क्यों ना हम आज से ही ऐसा करें। Let's take Christmas into our hands as a sweet. आइए हम क्रिसमस को हमारे हाथों में लेते हैं मिठाई करके। Let's take Jesus' birth as a sugar in our lives. आइए यीशु मसीह के जन्म को हमारे जीवन में एक मिठास करके लेते हैं। If we eat, we will get happiness. यदि हम उस मिठाई खाते मीठा खाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। If we give to others, they will have happiness. यदि हम दूसरों को ये मिठाई देते हैं तो वो भी खुशी को पाते हैं। If there is no sweet in a laddu or in a badshah or in a rasamalai, we will not eat it. यदि रसमलाई में, लड्डू में, बादशाह में, इस मिठाइयों में मिठास नहीं होगी, मीठा नहीं होगा तो हमें पसंद नहीं है। Many of us feel like nobody is valuing me, nobody is giving any respect for me and disvaluing me. बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कोई मुझे महत्व नहीं देता, कोई मुझे आदर नहीं देता, सब मुझे बहुत नीचा करके समझते हैं। Just include sweetness, just include Jesus' birth story in your life and then you check it. Who never think nobody will reject you and nobody will disvalue you and you will become a valuable story, transformational life story to others. आप यीशु मसीह को यीशु मसीह की मिठास को, यीशु मसीह के जन्म की उस मिठास भरी कहानी को अपने जीवन में लाकर देखिए। फिर आप देखेंगे कि कोई भी आपको कम महत्व नहीं दे रहा है, कोई भी आपको नीचे नहीं देख रहा है, हर एक कोई आपके जीवन में एक महत्व को जोड़ेगा। Our Father God believed that if I give sweetness like Jesus into my child's life, their lives will be transformed and then they will be saved. हमारे पिता ने ये सोचा कि यदि मैं उनके जीवन में मिठास को दूंगा, यानी कि यीशु मसीह को दूंगा, तो उनका जीवन बदल जाएगा। Just like I am adding sweet into laddu, I will add Jesus' story in my life and give a testimony to others. जैसे हम लड्डू में मिठास को मीठा भी डालते हैं लड्डू में मिठास के लिए, वैसे ही यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जोड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को लाएंगे, हमारा जीवन भी एक मिठास के जैसे, एक गवाही के जैसे होगा। Just as our Father gave His Son Jesus to us, we will give our Jesus, our transformational life story to others. जैसे पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, वैसे हम भी अपने जीवनों को, बदले हुए जीवनों को दूसरों के लिए देंगे। Let's take a decision to share the gospel to whoever you meet in your life. आइए हम निर्णय लेते हैं कि जिसे भी हम मिलेंगे हम सुसमाचार लेकर जाएंगे। Let's start praying. May my life become a transformational story of Jesus to others. आइए हम आज निर्णय लेते हैं कि मेरे जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक बदलाव की कहानी बन जाए यीशु मसीह को बांटने के लिए। God bless all of us with these words. परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। Thanking you all of you who took a choice to join in Good Morning Jesus. God bless all of you. आप सबको धन्यवाद जिन्होंने गुड मॉर्निंग जीसस जुड़ने में चुनाव लिया, और आप सबको परमेश्वर आशीष दे। May all the Christmas joy fills in your lives. और क्रिसमस का सारा आनंद आपके जीवन को भर दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Heavenly Father, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, for your loving words to us, आपके प्रिय वचनों के लिए, for your loving Son to us. आपके प्रिय पुत्र के लिए,
and for your life to us. और आपका जीवन हमारे लिए। Help us to reach out the people, those who need gospel. हमारी सहायता करें उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्हें सुसमाचार की ज़रूरत है। Help us to take these Bibles to wherever they need, हमारी सहायता के लिए इन वचनों को बाइबल को लेकर जाए जहाँ भी ज़रूरत है, because a sweetness is in the Bible, that is Jesus' birth. क्योंकि वो मिठास बाइबल में है, क्योंकि वहाँ यीशु के जन्म है। We want to make others' lives sweeter with the sweet you have given to us. हम दूसरों के जीवन में और भी मिठास भरना चाहते हैं, जो मिठास आपने हमें दी है। We want to bring into their lives joy and peace and happiness, Lord. हम उनके जीवन में शांति, आनंद और खुशियों को लाना चाहते हैं। Thanking you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We ask in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Bless all of the families, those who joined here. जितने परिवार जुड़े हैं सभी को आशीष कर, Let them apply these words in their lives, Lord. वो उनके जीवनों में इन वचनों को लागू कर सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।